Now let us understand the difference between the simple interest and compound interest. So let's say 100 rupees is borrowed and rate of interest is 20%. Okay, so simple interest के हिसाब से कितना interest आएगा and compound interest के हिसाब से कितना आएगा? Let us see the difference. Okay, so first year में what will be the P, R and T, that is principal, rate of interest and time period. Now in first year P, R and T will be same for both of these. Okay, 100 rupees लिया है, 20% rate of interest and time period is what? 1 year. 1 year के end में कितना interest charge हो रहा है? Let us see. Okay, so यहाँ पे principal is 100 rupees, rate of interest is 20% and time period is 1 year. Now I interest is what? P into R into T upon 100. So 100 into 20 into 1 upon 100 कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो जाएगा. ओके, सो इंटरेस्ट आया 20 रुपीज़. अमाउंट क्या हो जाएगा? कितना अमाउंट देना रहता है? प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट. ओके, सो जो जितना मनी बोरो किया है प्लस द इंटरेस्ट. ओके, सो 100 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़. So it is nothing but P plus I, which is 100 plus 20, which gives rupees 120. Okay, this is about the first year for simple interest. Now compound interest calculate करते हैं. Now principal is same, rupees 100 है, 100 borrow किया है, 20% is the rate of interest and time period is 1 year. ओके, सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो 100 इंटू 20 इंटू 1 अपॉन 100. सो 20 रुपीज़. ओके, इट इज़ सेम ओवर हियर. अमाउंट क्या हो जाएगा? द मनी बोरोड प्लस द इंटरेस्ट. ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 100, इंटरेस्ट इज़ 20. सो 100 plus 20, that is rupees 120. Okay, coming to second year. Now in simple interest principal तो same ही रहता है. Okay, so कितना borrow किया था? 100 rupees, 20%. Okay, 1 year. So interest क्या हो जाएगा? 100 into 20 into 1 upon 100. So you can see rate of interest charge for second year is also same. Okay, first year जितना ही है 20 रुपीज़ है. Okay, अमाउंट क्या हो जाएगा? ये अमाउंट तो देना पड़ेगा, राइट? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट प्लस दिस इंटरेस्ट. सो ये जो अमाउंट है उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. ओके, सो दिस plus this is the amount to be returned in the second year. This amount plus the interest. Okay, so it will be amount, okay, to be returned in first year. So first year का amount plus this interest second year का, that is nothing but 120 plus 20 which gives 140. मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट ईयर में 20 रुपीज़ इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर में 20 रुपीज़ इंटरेस्ट. इफ़ यू हैव नॉट रिटर्न इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे के वापस रिटर्न करना पड़ेगा मनी. ओके, सो यू कैन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम ओवर ईयर. ओके, नाउ सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं. ओवर ईयर प्रिंसिपल अमाउंट इज गोइंग टू चेंज नाउ बिकॉज यहाँ पे मनी रिटर्न नहीं किया, देन दिस बिकम्स द principal amount. Okay, so principal amount is rupees 120 over here, rate of interest is 20% and time period is 1 year. So you see, if principal will increase, interest will also increase. ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा. ओके, सो P into R into T upon 100.
So 120 into 20 into 1 upon 100. 12 into 2, that will give 24. Okay. So 24 rupees. Okay. First year में 20 rupees, second year में 24 rupees. So you see the interest has increased. Okay. So now this amount, ये तो रिटर्न नहीं किया, so ये अमाउंट प्लस दिस इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे था, ये अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया, तो ये अमाउंट में ये वाला सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट जितना टोटल हुआ था वो नहीं दिया है, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस जो अभी का इंटरेस्ट लगा है दैट. सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट दैट इज ₹120 एंड अभी का इंटरेस्ट दैट इज 24. So that will give 144. Okay. So now you see the difference. First year में it was same. Here it is 140. Here it is 144. So interest is increasing. Coming to third year. Okay. यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही रहने वाला है. Okay. 100 rupees ही बोरो किया था. 20%. Time period is 1 year. 100 into 20 into 1 upon 100 कैंसिल हो गया. 10 into 2 दैट इज 20. ठीक है. अमाउंट क्या हो जाएगा? दिस प्रीवियस अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं दिया है, सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट. सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट इज 140 प्लस द इंटरेस्ट. So that is 20 rupees. So rupees 160. So you see, यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट था 100. 20 rupees बढ़ा, 20 rupees बढ़ा, 20 rupees बढ़ा. So 20, 20, 20 is increasing. The increase in the interest is same. It is not changing. Okay, it is 20% each year, but 20% on principal amount only. Okay, इस पे ही लगा रहे. Principal amount is not changing over here. Okay. सो यहाँ पे देखते हैं अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. यहाँ पे पे नहीं किया, देन दिस बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट. सो 144, 20% एंड 1 ईयर. 144 into 20 into 1 upon 100. Okay. 0, 0. 2 5s are 144 divided by 5. 5 2s are 10. 5 8s are 40. Okay. 5 8s are 40. So 28.8. फर्स्ट ईयर में 20, सेकेंड ईयर में 24, थर्ड ईयर में 28.8. इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग. अमाउंट कितना हो जाएगा? थर्ड ईयर में कितना अमाउंट देना है? थर्ड ईयर में ये सेकेंड ईयर का अमाउंट तो दिया नहीं है, सो सेकेंड ईयर का अमाउंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट प्लस अभी का इंटरेस्ट. सो प्रीवियस ईयर का अमाउंट इज पेंडिंग, दैट इज 144 प्लस 28.8. ओके. सो ये हो जाएगा 172.8 rupees. So here it is 160, here it is 172.8. Compare the difference. Okay, so you can see there is difference. Now this is a small amount. If it would have been a large amount, ज़्यादा difference होता. Okay. Now simple interest is basically what? Any interest is the amount, total amount at the end of the time period. Let's say 3 साल बाद इतना return करना है, तो simple interest होता तो कितना होता? 160 होता. 160 was the final amount. Okay. So 160 फाइनल अमाउंट देख रहे हैं. ओके. सो फाइनल ईयर का अमाउंट माइनस द ओरिजिनल प्रिंसिपल. ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 100 रुपीज़. ओके. यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज वैसे भी नहीं होता है. सो यू कैन सी 60 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट फॉर 3 years. दैट इज हर एक ईयर का इंटरेस्ट इज 20 रुपीज़. नाउ लेट अस चेक ओवर ईयर. फाइनल ईयर का अमाउंट क्या हो रहा है? 172.8. सो
सो 172.8 इज़ द फाइनल अमाउंट. फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था फर्स्ट ईयर में? 100. ओरिजिनल प्रिंसिपल जो बोरो किया था मनी माइनस 100, दैट इज़ नथिंग बट 72.8 rupees. So you can see simple interest में the interest charge is little less compared to the compound interest. So now you can see the difference between simple interest and compound interest. In compound interest, the principal changes every year. If you don't pay the money, okay, जो final amount बचेगा वो final amount बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है. सो द इंटरेस्ट इंक्रीजेस. ओके.